धन्य धन्य बनाविश जन्म माहरो મને પંથ ચડ્યો છે દાતા તારો. ધન્ય ધન્ય બનાવિશ જન્મ મારો મને પંથ ચડ્યો છે દાતા તારો. જે પથ પર ચાલ્યા સ્વયં તીર્થંકરો દેવો પંથ ચડ્યો છે દાતા તારો. ધન્ય ધન્ય બનાવિશ જન્મ મારો મને પંથ ચડ્યો છે દાતા તારો. કોઈ કહેશે કે હૈયે મને ડર હશે, કોઈ કહેશે કે મુશ્કેલ સફર હશે. મને વિશ્વાસ છે મારા શાસન પર, જેની કરુણાથી ભીની આ સૃષ્ટિ સવર. ગુરુ ભગવંતનો મળ્યો મને આશરો, જેના ધણી બેઠા સ્વયં તીર્થંકરો. ધન્ય ધન્ય બનાવિશ જન્મ મારો મને પંથ ચડ્યો છે દાતા તારો. જ્યારે સંયમ અપાશે હશે મુક્તિ લક્ષ, નાચશો ખોલઈને હું સૌની સમક્ષ. મનમાં રાખીશ સત્ય અહિંસાનું પક્ષ, દાદા રહેજો હાજરા હજૂર પ્રત્યક્ષ. મારા શ્વાસમાં શ્વાસ નવો પાથરો, લખી આપો મુક્તિ સુખના હસ્તાક્ષરો. ધન્ય ધન્ય બનાવિશ જન્મ મારો મને પંથ ચડ્યો છે દાતા તારો. તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો, તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો. મને યાદ આવશે તારો સથવારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો. તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો, તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો. મને યાદ આવશે તારો સથવારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો.
મૂંઝાઈ જાવું, બસ ડગર મગર થઈ હું જોઉં તુજને, જાણે આખી દુનિયા મળી ગઈ મુજને. ડૂબતો હતો ને મળ્યો કિનારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો. જે ક્ષણો હતી આ મુજ જન્મારાની, શુભ પળો હતી આ. એ ક્ષણો હૃદયમાં કંડારી લીધી મેં, આતમની શેરી શણગારી લીધી મેં. વસમો ઘડો છે આવિયોગ તારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો, મને યાદ આવશે તારો સથવારો. જીરાવલા તું મનમાં સમાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો. હે જીરાવલા તું મનમાં સમાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો. તારી આંગી ઉતરે તું લાગે મજાનો, ને આંગી ચડે ત્યાં તું લાગે અજાણ્યો. પડ પડ રૂપ પલટે હર ક્ષણ તું મલકે, આ પ્રેમ રમતમાં મારી આંખો છલકે. આ ફરક હવે ના કે મેં ભૂલાતો, આ ફરક હવે ના કે મેં ભૂલાતો. મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો. ચંદ સમય જે તુજ સાથે ગાળ્યો, પણ આંખ ખુલી ત્યાં બસ તુજને ભાળ્યો. તને પ્રેમ કરીને અમે અહીંથી જાશું, આ રંગ મહેલમાં હવે સ્મિત ને આંસુ. અમથી ખમાતો આવી રહે
વાતો મને યાદ આવશે, તારી ગમતી વાતો મને યાદ આવશે, તારી ગમતી વાતો. મારું ધર્મા સ્વામી તું શીતળ છાયો, તું ભીડ વચાડે હું એકલવાયો, હું ચરણ કમળમાં પ્રતિપળ રહેવાનો, તું હૃદય કમળમાં હર પળ રહેવાનો. આ ઉદય કદી ના ભૂલશે આ રાતો, આ ઉદય કદી ના ભૂલશે આ રાતો. મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો, મને યાદ આવશે તારી ગમતી વાતો. भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, दादा आज थाने आनो है. भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, दादा आज थाने आनो है. मार को ले निभानो है. भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, दादा आज थाने आनो है. भक्ति की है रात. दरबार ओ दादा ऐसो सजो थारो, दयालो आप रो. दरबार ओ दादा ऐसो सजो थारो, दयालो आप रो. सेवा में ओ दादा सगड़ा खड़ा द्वारे, हुकुम बस आप रो. सेवा में थारे, सेवा में थारी हो दादा आज पीछे जानो है. सेवा में थारी, सेवा में थारी दादा आज पीछे जानो है. मार को निभानो है. भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, दादा आज थाने आनो है. भक्ति की है रात. सबसे पहले मुमुक्षु रत्ना श्वेता कुमारी, जो कल चंद्रबाला के श्वेत वस्त्रों में इसी समय पर हमको दिखेंगे, अब संसार के इस रंग बिरंगी वस्त्रों के अंदर आज यहाँ पर पधार कर हम सबके आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं. सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जड़ियन का जामा, मोतियन की माल, आजूस से महाव्रत भारी, कंचन कामिनी की त्यागी, पंचपद को पानी
शासन न्यारी वैराग्नी मुमुक्षु श्वेताबेन पधार रहे हैं। दुर्मन वाला तेरे स्नेही संगाथ में जोड़ी संगाथ में स्नेह दी ग्रह बधा बंदोरे रजोहरण ने बंदोरे काम धरी आनंदोरे दीक्षा दी अमर रहो दीक्षा दी नो जय जय का त्याग धर्म नो जय जय का शमन धर्म नो जय जय का बंदोरे रजोहरण ने बंदोरे काम धरी आनंदोरे दीक्षा दी अमर रहो दीक्षा दी नो जय जय का। एक बार जितने भी महानुभाव खड़े हैं वो दीक्षा दे दो दीक्षा दे दो अरे दीक्षा दी नो जय जय का दीक्षा दी नो जय जय का। अरे धरू नहीं मैं धन्य कंचन कीर्ति में अरे साधु जीवन की खूबसूरती में ओ साधु जीवन की खूबसूरती में ओ साधु जीवन की खूबसूरती में ओ साधु जीवन की खूबसूरती में वरडो लागो वरडो लागो वरडो लागो लागो रे कीर्ति खूबसूरती हो साधु जीवन की खूबसूरती लागो रे कीर्ति वरडो लागो रे कीर्ति लागो रे कीर्ति वरडो एक बार वापस दीक्षा दी अमर होती ओ दीक्षा दी नो अरे दीक्षा दी नो वापस दीक्षा दी नो अरे दीक्षा दी नो ओ साधु जीवन की खूबसूरती में ओ साधु जीवन की खूबसूरती में मंदिरो लागो रे कीर्ति। और विश्वादेवी की लाडली राधे गगननी गोख डाले जग आगो जाती दीक्षा दी नो ओ दीक्षा दी नो बंदन लाखों लाखों बंदन लाखों
लगभग 99% में मुमुक्षु के मुख से सुनता हूँ तो सबसे फेवरेट उनके नेमनाथ भगवान होते हैं। फिर वो हमारे मुमुक्षु रत्ना श्वेता कुमारी हो या समता कुमारी हो, और इतने फेवरेट है कि गीत भी गिरनार दादा के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। आज ये परमात्मा को कह रहे हैं, प्रभु बस अब मैं आपकी राजूल बनकर हमेशा के लिए आपसे प्रीत बांधने के लिए आ रही हूँ। संसार में रहती तो किसी पति को परमेश्वर बनाती, अब हे परमेश्वर आपको पति बनाने के लिए मैं आ रही हूँ। अब आज से सब कुछ आप ही हो। एक होता है संसार के अंदर भी प्रेम करते हैं ना, लेकिन एक होता है कि एवरीथिंग ऑफ मी नथिंग ऑफ यू, जो कुछ भी है सब कुछ मेरा, तेरा कुछ भी नहीं। उसे क्या कहते हैं? प्रेम नहीं, उसे स्वार्थ कहते हैं। एक होता है समथिंग ऑफ यू समथिंग ऑफ मी, कुछ तेरा भी कुछ मेरा भी। तू मेरी केयर करेगा ना तो मैं तेरी केयर करूंगा, तू मुझसे बात करेगा तो मैं बात करूंगी। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, इसे कहते हैं राग। लेकिन सच्चा प्रेम जो मुमुक्षु रत्ना ने प्रभु से किया है, एवरीथिंग ऑफ यू नथिंग ऑफ मी, प्रभु अब से सब कुछ आपका, तेरा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। अब मानेतर पहनूंगी तो प्रभु तेरी आज्ञा का, अब मंगलसूत्र पहनूंगी तो प्रभु रजोहरण के रूप में, अब प्रदक्षिणा दूंगी तो प्रभु आपको प्रदक्षिणा दूंगी, आपकी आज्ञा में घूमूंगी और किधर भी नहीं। आओ आज एक बार मुमुक्षु रत्ना की आंखों में बसे ऐसे नेमनाथ दादा का दर्शन करते हैं। आप यहाँ से अपने दादा का दीदार करना, ये आपकी आंखों में नेमनाथ दादा का दीदार करेंगे मुमुक्षु रत्ना। चलिए संगीत के साथ। मन मेरे दे शिव वधु प्यारे आने में तो गिरनारी छे, राजुल रानी तारी छे, बड़ी पशुओं कनो खारी रे, ए तो पाम्या शिव वधु प्यारी रे, पुण्य नहीं पुण्य नहीं जोशे ए तारू वसुवन भ्रमणोनी यात्रा तोड़ती संसारे पर शाश्वत सुख नो वंश नहीं। भ्रमणोनी यात्रा अंत छे आनंद ओ भ्रमणोनी यात्रा अंत छे आनंद। 22 मास धारा ने द्वारका दुहारा, गिरनार नाग भारा शोभनार थे, ब्रह्मचर्य नारा संधर नारा, शिव दया देवी नमामि देवी, ब्रह्मचर्य नारा संधर नारा जिनको है नेमनाथ दादा मन गमता, वो है मुमुक्षु श्वेता और वैरागी और नेम के भावों में ही रमना, वो है मुमुक्षु श्वेता और आज मैं नहीं, देवलोक के देव भी कहते हैं कि बस आज मुझे भी इनके चरणों में ही नमना। अब ना देंगे जो किसी को पीड़ा और रहेंगे हमेशा, रखेंगे समरसता,
वो है मुमुक्षु श्वेता और जिन्होंने जगाई है संयम लेने की क्षमता, वो है मुमुक्षु श्वेता और श्वासे श्वासे नवीनाथ विराजे रोवे आज हम जोई करे इस क्षण ओ हाय छे मारो मन छे मारो मन छोटी रानी ब्रह्मचारी जाऊं तुझ पर रूह पाती तू पीना रूह छिहारी राती मनी प्रभु वीर जिन्होंने शासन की स्थापना की और शासन की स्थापना के साथ एक संयम रूपी नाव को तैरता रखा। बस जिसको भी भवसागर पार होना है, इस संयम रूपी नाव में बैठो, आप भवसागर पार हो जाओगे। ऐसे प्रभु महावीर ने जिस नावड़ी को रखा था, जिस दीपक को ज्योत को जगाया था, उस नावड़ी में बैठकर आज भी इस ज्योत के अंदर प्रज्वलित रखने के अंदर अपना संपूर्ण समर्पण देने के लिए ये दोनों मुमुक्षु आतुर है। जो तन की शक्ति रखता हो वो वीर हो सकता है, जो तन को वश में रखने की शक्ति रखे वो वीर है, लेकिन जो मन को भी वश में कर ले वो सिर्फ मेरा महावीर है। अरे जो किसी को भी गिराने में शक्तिमान हो वो वीर हो सकता है, लेकिन गिरे हुए को उठा देवे वो सिर्फ मेरा महावीर है। जो किसी व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं कि मुट्ठी में दबा दे वो वीर हो सकता है। लोग जो अपने मन और मान को मुट्ठी में दबा दे वो सिर्फ मेरा महावीर हो सकता है। जो रण मैदान में जीते वो वीर है, लेकिन जो मरण को भी जीत ले वो सिर्फ मेरा महावीर है। अरे जिसके पास शरीर की शक्ति अधिक हो वो वीर हो सकता है, लेकिन जिसके पास सहन शक्ति अधिक है ना वो सिर्फ मेरा महावीर है। अरे जो शस्त्र से शुद्ध हो वो वीर है, लेकिन जो शास्त्र से शुद्ध हो वो सिर्फ मेरा महावीर है। आज आप भी प्रभु महावीर के इस पंथ पर जा रहे हो, अपने प्राण प्यारे माता पिता आदि के वंश को छोड़कर प्रभु वीर का वंश और अंश बनने के लिए जा रहे हो। तब ये दीपक प्रज्वलित करते हुए मोक्ष रत्न आपको एक प्रार्थना करनी है प्रभु वीर से आज, और ये प्रार्थना अंतर की ऐसी हो कि प्रभु आपके जैसी करुणा का प्रकाश मेरे जीवन में प्रगटे, आपके जैसी क्षमा का प्रकाश मेरे जीवन में प्रगटे। हे प्रभु वीर, आपके जैसी केवल ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर प्रगटे। इस भाव के साथ में आपको ये दीपक प्रगटाना है। बस आपको यही करना है। जब मुमुक्षु रत्न इधर आए आप क्या करेंगे? आपके पास में भी कुछ तो है, क्या है? मोबाइल है। आप मोबाइल की लाइट करते हुए एक प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम और कुछ तो नहीं कर सकते हैं,
बस ये दीपक प्रज्वलित हो ना तब कोडिंग का काम कर सकते हैं। ये तूफान आने वाली आफतों से मेरे शासन की रक्षा हो, मेरे साधु साध्वी भगवान श्रमण श्रमणी भगवंतों की सुरक्षा हो, इसके लिए मैं मेरा सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। ये भाव के साथ में आज से हम आपके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए रखेंगे और आपके जीवन में जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान का प्रकाश प्रगटे। ये भाव के साथ में हम यहाँ से मोबाइल की टॉर्च की लाइन ऑन करेंगे। मुक्ति के द्वार पहुँचाए संयम, सुख की सिंधु में ले जाए संयम, आप भरे जग से छुड़ाए संयम। दीपक उजाले का प्रतीक है, दीपक प्रकाश का प्रतीक है, समर्पण का, स्वाध्याय का, वेयावच का और पंचम ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जल्दी से जल्दी प्रज्वलित हो, ऐसा भाव आज सकल सिरसंग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। छोर संथा क्या रे धश मारा भवनो रे अंत, क्या रे बनी शबु सा छोर संथा क्या रे धश मारा भवनो रे। एक पल सब साथ में। तेरो संग खारो हारो लागे, संसारो सब खारो हारो लागे। हो जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। रोज की भी मेरे से हिंसा ना हो, ऐसा निष्पाप जीवन जीने जा रहे दोनों वैरागियों को वंदन वंदन और सैल्यूट है। भगवान की आज्ञा को लात मार के भी हम रात को 12 बजे रेस्टोरेंट और होटल का दरवाजा ढूंढते हैं। ये जीव हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रभु की आज्ञा भले ही रही, हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन ऐसे काल में जब मारवाड़ की भयंकर गर्मी हो या ईसा साइड विचरना हो या गढ़ सिवाना साइड विचरना हो, कहीं पर भी जाना हो, मारवाड़ में वैशाख की जून की गर्मी हो और उसमें कितनी भी प्यास लगे ना, जो रात को पानी पीने का विचार भी नहीं करेंगे, ऐसी अजायबी समाज जीवन जीने जा रहे हमारे दोनों मुमुक्षु रत्ना को एक बार सब साथ में मिलके वैरागी ने हेलो वैरागी ने बंधन, 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 वैरागी ने बंधन। ये जो संयम क्यारे बढ़े है ना, ये भले 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर तक चले, आप सबके अंदर ये भावना रखना। मैं 1-2 पंक्तियां बोलूंगा, अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाना। कुदरत आपको सफेद कपड़ा पहना दे, उससे पहले आप सफेद कपड़ा पहन लो। कल जिन्होंने संयम क्यारे मर्शे की भावना भाई और कल उनको यही संयम पद मिलने वाला है, हम यही प्रयत्न करेंगे कि इसी संयम क्यारे मर्शे के पद क्या पता अपने लाइफ में भी आज एक छोटा टर्निंग पॉइंट आ जाए, इसी भावना के साथ। रजो हरण मारू मंगले सूत्र हो जा, तारी मुपति हाथ नु मिठन, तारी प्रीत नु पाने सजीने आभूषो वीरती विभा माटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
સંસાર ત્યાગીને આવું છું સંયમનારથી શોરા સત્વ કે બોલાવે જોઈ જોઈ મારું હૈયું બોલે આજ ભાવે કે સંયમ ક્યારે ક્યારે મળશે ઓ મુझे ક્યારે મળશે ઓ સંયમ ક્યારે મળશે एक बार हृदय से यही पंक्तियां जितनी बार आप बोलोगे ना क्या पता आपके भी कर्म टूटे और आप आज की इस विदाई में आपका भी कुछ ना कुछ भले 1% हो लेकिन वो 1% का टर्निंग पॉइंट हो आपकी लाइफ में संयम क्यारे मनसे हो क्यारे क्यारे मनसे हो मुझे क्यारे मनसे हो संयम क्यारे और मोक्ष में तो ये बोलेगी कि संयम काले मनसे हो काले काले मनसे हो मुझे काले मनसे हो संयम काले मनसे संयम ना भावनी करोने परीक्षा मारे तो लेवानी छे दीक्षा मारे तो लेवानी छे दीक्षा। मैंने सोचा कि ये भाव की ताकत होती है क्या, यहाँ पर जो भाव आया तो उसका भी परिणाम आता है स्पेशल कोई। तब ये घटना मेरे विचार में आई, मैं आप तक पहुंचा हूँ कि एक भाव भाया हुआ हमें कहाँ तक लेके जाता है। भाव की बहुत ताकत है। जब परमात्मा महावीर स्वामी बिहार साइड विचरण कर रहे थे और पाकिस्तान साइड में प्रभावती रानी और उदयन राजा भावना भाते हैं, प्रभु महावीर अगर इधर आ जाए तो हम दोनों दीक्षा लेंगे। खाली भाव भाते हैं, अगर महावीर इधर आए तो हम दीक्षा ले लेंगे। आप मानोगे नहीं, उनके भाव से खींचकर परमात्मा स्वयं बिहार से पाकिस्तान के प्रदेश में गए और उन दोनों ने दीक्षा ली। एक भाव की ताकत। एक बार एक छोटा सा 3 महीने का बच्चा घोड़िया में रखतो तो 3 मीनारो बच्चों के छोटो लड़को तो बोले है क्या 3 मीनारो सोरो बोले है क्या नहीं बोले है वो बोलवा लागो 3 मीनारो सोरो बोलवा लागो और मम्मी किचन के अंदर रसोई बना रही थी। घर में और कोई नहीं था, छोटा बच्चा अचानक से बोलता है और वो भी गुजराती फैमिली में बच्चा है और इंग्लिश में बोलता है, वेयर इज माई कार एंड वेयर इज माई पासपोर्ट। जैसे ही सुना मम्मी बाहर आई, बोला टीवी का बटन कोई ऑन तो नहीं है, हाँ है नहीं घर में, तो कोई बोल कौन रहा है। वापस अंदर गई, वापस आवाज आई, वेयर इज माई कार एंड वेयर इज माई पासपोर्ट। मम्मी वापस बाहर आई और उसने क्या किया, बच्चे के उधर ध्यान रखा कि बच्चे के वहां से तो आवाज नहीं आ रही कि घर में कोई है ही नहीं। कुछ देर हुई और अचानक से आवाज आई और बच्चा बोला, वेयर इज माई कार एंड वेयर इज माई पासपोर्ट। मम्मी टेंशन में, कोई भूत भी जो लागो के का सो रहा, 3 मीनार सो रहा, इंग्लिश में बोले रही है, घर में कोई इंग्लिश किसी को नहीं आती है। और उस समय जिसने बर्थ किया था, जन्म जहाँ हुआ था, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने कहा हो सकता है, ऐसा होता है कभी रेयर केस में होता है कि बच्चा पिछले जन्म की मेमोरी में चला जाता है, इसके लिए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होते हैं, आप उसके पास में बताओ। और बच्चों के जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उसके पास में उसको भेजा, बताया। उसने पूछा कि 7 दिन मेरे पास में उसको रखो, मैं उसकी निगरानी करूंगा, पता करूंगा क्या है। और उसके साथ में बातचीत की और उसका पता चला कि ये कौन है। उसने सब कुछ बोला, माय नेम इज जोसेफ फर्नांडिस, आई एम कमिंग फ्रॉम बैंकॉक, मैं बैंकॉक से आया हूँ, जोसेफ फर्नांडिस हूँ। वहाँ पे मेरी कार पड़ी थी, पीली कलर की कार थी, ये गाड़ी का नंबर है और उसके आगे की डिक्की के अंदर, और उसके अंदर मेरे क्या पड़ा है, पासपोर्ट पड़ा है। सब कुछ बोला। मम्मी, पापा और उसके पापा के भाई, वो तीनों बैंकॉक में गए और लास्ट में वो जहाँ गया था वहां तक पहुंचे, वहां चर्च थी। क्रिश्चियन कौन था, क्रिश्चियन था। चर्च थी और चर्च के वहां पे देखा कोई आजू बाजू में कुछ नहीं है, मतलब ये इधर ही आता होगा। अंदर पादरी से मिले और उसको बोला, इस नाम के लड़के को जानते हो? बोला हाँ, थोड़े ही टाइम पहले मर चुका है वो, तो मर चुका है, लेकिन हुआ क्या? बोला ये है ना, मर्सिडीज गाड़ी लेकर आता था, गाड़ी कहाँ है? वो पीछे पड़ी है। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में
क्या हुआ उसके साथ। तब उसने पादरी ने कहा कि मर्सिडीज गाड़ी लेके आया, उसने वहां गाड़ी रखी और मुझे आके कहने लगा, हे फादर मेरे पास में बहुत पैसा है, वहां संपत्ति है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, मेरी आत्मा का उद्धार हो ऐसा अब मुझे कोई भाव चाहिए, ऐसा कोई रास्ता बताओ, मुझे सच्चा धर्म मिले। ये शब्द थे, मुझे सच्चा धर्म मिले, ऐसा कोई धर्म बताओ जो एकदम सच्चा धर्म हो। और ऐसे भाव के अंदर उसकी मृत्यु हो गई उधर। अभी भी उसकी गाड़ी पड़ी है, गाड़ी देखी, वही नंबर की गाड़ी, अंदर से पासपोर्ट भी लिया। एक भाव भाया कि मुझे सच्चा धर्म मिले और मेरी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा भाव मिले। और उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? गुजराती जैन कुल में हुआ। और आगे सुनिए, उस बच्चे ने आगे जाके दीक्षा ली, उपन्यास प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के पास में दीक्षा ली। और उस महाराज साहब का नाम पड़ा नए बोधि विजय जी महाराज साहेब। 3 दिन के पहले मैं उनका दर्शन करके आ चुका हूँ, MP उधेल के अंदर थे। एक भाव ने उनको इस जन्म के अंदर चारित्र तक पहुंचा दिया। ये भाव की ताकत है। एक संयम प्यारे वर्ष, ये भाव भाव है ना, इनको मिल रहा है, इनको कल मिलेगा। मुझे संयम मिले, मेरे क्रोध पे मिले, ये पैसे कमाने का जो लोभ जगाए ना, उस पे मुझे संयम मिले। मुझे जो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ना बार बार, उस पर मुझे संयम मिले। मुझे मेरी आंखों पर, मेरे पांव पर, मुझे हर एक इंद्रिय पर संयम मिले। ऐसा संयम तो कम से कम आए कि नहीं आए, ऐसे भाव के साथ में। हेलो के बुलावे जोई जोई मारू हियो बोले आज भावे कि संयम क्या रे मनुष्य, क्या रे मनुष्य, मुझने क्या रे मनुष्य, वो संयम क्या रे मनुष्य, वो संयम क्या रे मनुष्य, वो क्या रे वो मुझने क्या रे मनुष्य, वो संयम क्या रे मनुष्य। वो तो जीत परंतु भाई मुझने ना पावे, और मुनिवर मणि ने भी हर पूछे, मुनिवर मणि ने भी हर पूछे, और बोले आनंद पावे। और साधु तनानी, ओ साधु तनानी, हो साधु तनानी, पूछा हूँ दीक्षा मारे तो। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बुढ़े हुए, शनिवार को बीमार हुए और रविवार को। तो क्या इसके लिए पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे? प्रभु को पूछा गया, हे बनते, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके क्या करना चाहिए? तो प्रभु वीर फरमाते, हे गोया, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मात्र और मात्र दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन प्रभु इनके जैसा सत्व ना हो, चारित्र मौन्य कर्म का क्षोभम ना हो, ऐसा पुण्य ना हो, ऐसा बोहरा परिवार या ऐसा हमारे ढेलड़िया पूथा परिवार जैसा परिवार ना हो, ऐसे माता पिता ना हो, तो क्या करे प्रभु? प्रभु फरमाते हैं, अगर दीक्षा ना ले सको ना, तो पूरी जिंदगी साधु और साध्वी जी की वया बच करके जीवन को सफल बनाना चाहिए, और कुछ करने जैसा नहीं है। लेकिन हम पता नहीं कहाँ उलझ चुके हैं। एक हृदय से आवाज यहाँ नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? एक बार अंतिम पलों के अंदर प्रवेश करें 2 मिनट के लिए। हेलो संयम न भावने करोने परीक्षा, और संयम न भावने करोने परीक्षा। जय जयकार करे।
पे नहीं गए। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। कर्म योग यानी हमारे जो भी उपकारी है उनको पहले याद करना, उनके उपकार के बिना ये संयम क्यारे मरशे, इनकी भावना, ये भावना की भावना ही रह जाती, आपकी भावना कभी सार्थक नहीं होती। आपको क्या लगता है, कई ऐसे मुमुक्षु है जिनका इतना पुरुषार्थ है, उसके बावजूद भी अभी तक संयम के इस मनोरथ को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे परिवार का मोह और परिवार अपना मोह छोड़ नहीं पाया। मैं ऐसे भी मुमुक्षु को जानता हूं जिनका मुहूर्त निकलने के बाद भी उनके दादा ने रोका और उनको रुकना पड़ा। दादा ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना, मेरा घर एकदम सुना हो जाता है, तुम और 2-3 साल निकालो। और दादा की जबरदस्त जीत, और उसके लिए दादा के पीछे भी रहना पड़ा। घर के वडील का मान रखना पड़ता है, लेकिन आपका पुण्योदय इतना कि इतना विशाल आप दोनों का परिवार, और परिवार ने पूरे के पूरे परिवार ने अपने हृदय पर मेरू पर्वत रखा और आप दोनों को परमिशन दी है। आज अपने परिवार के इस उपकार को याद करना है। ये आशीर्वाद तो ये सब देंगे, जितने, जो आपकी दादी, जो आपके परिवार, ये सब जो आपको आशीर्वाद देंगे ना, वो शायद आशीर्वाद दूसरा नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो फीलिंग आपके साथ है, जो पूरी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है, वो तीसरे के साथ नहीं है। तो आज आपको आशीर्वाद लेने हैं। और कई आचार्य भगवंतों के मुख से सुना है कि जितने आशीर्वाद ज्यादा, उतनी संयम जीवन में उन्नति ज्यादा होती है। तो मैं विनती करता हूं कि आप सबसे पहले अपनी दादी, सुंदरबेन नाम है, सुंदरबेन को यहाँ पर अपने हाथों से खड़े होकर और यहाँ तक स्टेज तक लेकर आएंगे। और साथ में अपने दादाजी की फोटो भी है, तो फोटो को भी साथ में लेके आना है। 9 महीने पहले दादाजी, 9 महीने हुए बस, खाली 9 महीने हुए हैं दादाजी को दुनिया छोड़े हुए। 9 महीने शायद और रहते तो आज दादाजी भी आज यहाँ पर इस दृश्य को देखकर कितना आनंदित होते। और जबरदस्त पीड़ा थी, और उस पीड़ा के अंदर भी इन्होंने जो सेवा की है, इन्होंने जो सेवा की है, दादा को एक बार भी चेहरा उदास होने नहीं दिया। हमेशा साथ में रहते थे मुमुक्षु रत्ना अपने दादाजी की सेवा के लिए। और दादाजी की सेवा के लिए इन्होंने अपने संयम जीवन की यात्रा को और आगे बढ़ाया। शायद हो सकता था कि 1-2 साल पहले भी दीक्षा ले लेवे, लेकिन नहीं, मेरे दादाजी की सेवा भी मुझे साथ में करनी है। और इसके लिए दादाजी को समाधि देने के लिए इन्होंने घर का, उस समय इन्होंने घर पर रहे और दादाजी को पूर्ण समाधि दी है। ऐसे मुमुक्षु रत्ना आज अपने दादाजी को भी देवलोक से आशीर्वाद लेने के लिए और साथ में दादी जी को यहाँ पर स्टेज पर लेने के लिए आगे पधारेंगे। और सतधी में से बिरती ना विचार अब नाज़िरे निरख्या शमनुना चार अब जागीरे मनमा एक ज प्यार बाजार में जाओगे तो लोभी मिलेंगे, रिसोर्ट आदि में जाओगे तो भोगी मिलेंगे, लेकिन आप एक बार गेलड़िया मुता परिवार में आओगे ना तो आपको 4-4 योगी मिलेंगे, 4-4 योगी मिलेंगे। अनेक दीक्षाएं इस परिवार में हुई है। आज दादी कितनी खुश होती होगी कि मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली आज प्रभु के मार्ग पर जा रही है। वो जो दुनिया है उनकी, वो दुनिया, उनकी खुशी की दुनिया, सबसे अच्छी दुनिया, आज उसी दुनिया का एक भाग आपकी पोती। और ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे सुरेश भाई की इकलौती पुत्री
आज प्रभु के मार्ग पर जा रही है, आपके गुरु का कुल का गौरव बढ़ा रही है, किसी एरे गेरे के वहां पे न फंसते हुए बस आज प्रभु को अपना पति बनाने जा रही है। अरे 3 लोक के नाथ आपके जमाई बनने वाले हैं, ऐसे प्रभु से प्रीति बांधने जा रही है। तब आज जी भरकर आप इन दोनों को अंतर के आशीष प्रदाना और आप अक्षय पद पाने की कामना करना। आपके भी शाली संकल्प बने ने वीर प्रभु नाम रे शुद्ध योगी बनी ने विचर जे तू योगी बनी ने विचर जे तू जोगी बनी ने विचर जे तू योगी बनी ने विचर जे तू जोगी बनी ने विचर जे सत्वथिया दुनिया में निष्पाक मुझने बनावो खुद तारा प्रेम जो भी चाहो मैं छोड़ गायूं क्या रे बनावे ने खुद तारा प्रेम जो भी चाहो मैं छोड़ कुछ भी ताली बजाओ नहीं बजाओ आपकी इच्छा। हमारे धीरज भाई के लिए भी आप कुछ भी ताली बजाओ नहीं बजाओ आपकी इच्छा। लेकिन अभी जो हस्तियां आने वाली है उनको खूब तालियों से बधाना, क्योंकि आज जिन शासन के अंदर जो संस्कार बचा है, हमारे बेटे बेटियों के अंदर जो कुछ भी संस्कार बचे हैं और शासन आने वाले 18,000 साल तक चलने वाला है, उसके पीछे ये जो धवल सेना श्रमणी भगवंतों की परंपरा चल रही है, उन सब के पीछे इन माता और पिताओं ने किया हुआ अपना यह सर्वस्व का दान है, अपनी संतति का दान है। कितने साध्वी होंगे अभी वर्तमान में? लगभग 18,000 जितने होंगे। 18,000 साधु साध्वी
और कुछ भी नहीं, ये 36,000 माता और पिताओं का बलिदान है, जिसके कारण से ये साधु साध्वी भगवंत की परंपरा देखने को मिलती है। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने अपनी प्राण प्यारी संतान को प्रभु के चरणों में सौंपा है, आज उस माँ को याद करना है, उस पिता को, उस परिवार को याद करना है। पालीताना तो सब गए हैं, बराबर है। पालीताना आप जा रहे हो, मुमुक्षु रत्ना, कोई पालीताना जा रहा है और शत्रुंजय जाते जाते तखतगढ़ भवन की धर्मशाला से आगे बढ़ रहा है, और उसी समय एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पालीताना जाना था, शत्रुंजय जाना था, अचानक से फोन आ गया, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैंने फ्रूट भी लाके रखे थे, आप ये फ्रूट चढ़ा देना। 1.5 किलो का उसने तरबूज दिया और एक चीकू दिया, एक तलेटी पे रख लेना और एक दादा के दरबार पे रख लेना। अब आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से, तलेटी पे कौन सा रखोगे, दादा के दरबार पे कौन सा रखोगे? और परेश भाई होसनवी के वे हो पारी तो गणे लेन जाओ, जतरी सेज है अतरी लेन जाओ, जितना वजन कम हो इतना ठीक है। 1.5 किलो का वजन हम 2.5 घंटे तक उठाने को तैयार नहीं है, तो जो माँ 9 महीने तक हमारा वजन उठा के घूमती है और हमें जन्म देती है, उस माँ का उपकार कितना होगा, उस माँ का उपकार कितना होगा। आज जापान के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 20-20 हड्डी को एक साथ में तोड़ो, उससे जो पीड़ा होती है ना, उससे अधिक पीड़ा एक माँ अपने पुत्र और पुत्री को जन्म देने के समय महसूस करती है, फिर भी उसे जन्म देती है। मात्र जन्म नहीं देती, उसे अपना पूरा जीवन दे देती है, उसकी खुशियों की खातिर अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर देती है। और आज जो मुमुक्षु रत्ना ने कहा कि मेरी खुशी तो संयम जीवन के अंदर है, तो इस खुशी के लिए अपनी माँ ने अपनी खुशी की चिंता नहीं की, आज उनकी खुशियों के लिए आज अपनी प्राण प्यारी बेटी को गुरु मैया के चरणों में, प्रभु के चरणों में सौंपा है। विनती करता हूँ दोनों अपनी अपनी मातुश्री को यहाँ पर लेकर आएंगे। चलिए।